योगी का राज तिलक आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश इस वक्त। और योगी आदित्यनाथ ने अब ले ली है शपथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद के रूप में। मैं हूं जया सिन्हा और मेरे साथ हैं इस खास कार्यक्रम में शुभेंदु। Right, Jaya, thank you. And big day for Uttar Pradesh. Five-time MP from Gorakhpur, Yogi Adityanath is sworn in as Uttar Pradesh Chief Minister, and along with him, KP Maurya and Dinesh Sharma also take oath as Deputy Chief Minister. So big day, big time for change in Uttar Pradesh. And in this special presentation, we're going to talk about the new leader, the challenges ahead of the new government, and the special program Yogi Ka Raj Tilak. And we're joined by special guest in the studio as well. Let me first introduce you to senior journalist Vineet Narayan, who's joining us to give us his views about this new development, this need for change that is happening in Uttar Pradesh. साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार शेखर अय्यर साहब भी हमारे साथ जुड़े हैं इस वक्त स्टूडियो में। उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे क्या चुनौतियां हैं इस बार सरकार के सामने और क्या कुछ समीकरणों का ख्याल रखा है इस बार पार्टी ने सबने। और आइए शुरुआत करते हैं, देख लेते हैं कि किस तरह से हम इस वक्त अपनी चर्चा की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करना चाहेंगे शुभेंदु जी से। बिल्कुल, और अगर हम सबसे पहले बात करें विनीत जी आपसे और पूछें कि when the name came up yesterday, Yogi Adityanath, people were surprised. Some sections were in fact raising eyebrows as well. But how do you see him as a leader who's going to take Uttar Pradesh ahead in the coming years? Do you see him as a natural choice for this position? शुभेंदु, इस वक्त राजनीति में जो सबसे बड़ा संकट है वो क्रेडिबिलिटी का है। विश्वसनीय नेतृत्व का राजनीति में बहुत अभाव हो गया है। और योगी आदित्यनाथ के बारे में एक बात बिल्कुल बिना विवाद के कही जा सकती है कि अपने 5 संसदीय कार्यकाल में और अपने पूरे जीवन में उन्होंने एक चरित्र को सबके सामने रखा है। 21 साल की उम्र में कोई नौजवान अगर घर को छोड़ता है देश और धर्म के लिए, तो उसके अंदर कोई जुनून, कोई देश के लिए कुछ करने की भावना होगी तभी आए। और जिस गद्दी पर वो बैठे हैं गोरख पंत, उस गद्दी की एक परंपरा रही है कि वहां बैठने वाले संत राष्ट्रभक्त रहे हैं, क्रांतिकारी रहे हैं, और वो हर मौके पर उन्होंने परीक्षा की घड़ी में कुछ मजबूत कदम उठाए। तो मैं समझता हूं कि एक ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है जिसको सोचना चाहिए कि ऐसे समय में जब राजनेताओं के चरित्र और आचरण पर उंगलियां उठती हों, तब एक चरित्रवान व्यक्ति को अगर मौका दिया जा रहा है तो उसको परखने का समय दिया जाना चाहिए। And here, if you can also understand, this UP election was also seen as run-up to 2019 Lok Sabha elections, and therefore the choice of the CM candidate was very crucial. From that perspective, what does BJP's choice represent when Yogi Adityanath now has become the Chief Minister of Uttar Pradesh? Well, I mean, without mincing word, I can say that definitely he's going to be a rallying point for a large number of UP community, because he has that charismatic personality and the leadership quality, with the very fact that he has won successively 5 Lok Sabha elections. And in this election also, the party president Amit Shah used him as a main celebrity campaigner, and he galvanized the whole state. In fact, when the first round was taking place, there was a lot of apprehension about whether BJP is going to perform well or not. But it seems that both Amit Shah, Modi and Adityanath, 3 of them campaigned such vigorously that, and so keeping that mind, I think 2019 election, they need to galvanize the state in support of their ideology and party, and योगी आदित्यनाथ is going to be a big rallying point for that. बिल्कुल एक बड़ा नाम और बहुत ही उम्मीदों और आकांक्षाओं की यहाँ पर बात हो रही है। हमने देखा शेखर जी, किसी भी असेंबली चुनाव में इतनी बड़ी जीत, इतनी बड़ी लहर किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए नहीं दिखी, और ये पहला मौका था जब ऐसा हुआ है। ऐसे में जिस विकास के सपने को लेकर जनता ने भाजपा को वोट दिया है, बीजेपी को वोट दिया, उस सारी उम्मीदों का बोझ अब यहाँ पर नजर आ रहा है योगी आदित्यनाथ पर, मुख्यमंत्री पर। किस तरह से लगता है कितनी बड़ी चुनौती होगी उनके लिए इस पूरे सपने को, कांक्षाओं को पूरा करने और उस पर खरा उतरने की? नहीं, बहुत बड़ी चुनौती है। ये चुनौती केवल योगी आदित्यनाथ जी के लिए नहीं है, ये पार्टी के लिए भी है और खास करके हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए भी है, क्योंकि ये चुनाव का सबसे बड़ा अगर चीफ कैंपेनर रहा वह हमारे प्रधानमंत्री, लेकिन उसके साथ साथ अगर मोदी जी के अलावा किसी ने सब कॉन्स्टिट्यूंसी में जाके मीटिंग्स अगर की 100 से ज्यादा, वो है आदित्यनाथ जी ने किया है। और एमएलएस का भी, जो कैंडिडेट्स का भी यही डिमांड था कि उनकी मीटिंग हो जाए अगर मोदी जी की ना भी हो। तो जहां जहां मोदी जी गए ना गए वहां आदित्यनाथ जी गए। तो एक प्रकार से उनका जो अपील रहा है खास करके बीजेपी के आइडियोलॉजी को लेकर, वो हमेशा रहा है। दूसरी बात क्या है, क्योंकि इस चुनाव केवल आइडियोलॉजी की चुनाव नहीं है, ये चुनाव विकास का है। और बार बार विकास, जिस विकास में विकास
अपनी आइडियोलॉजी से मतलब न केवल प्रभावित है, उससे ऊर्जा भी लेती है। तो ऐसे अगर व्यक्ति जिसका बीजेपी के आइडियोलॉजी में जुड़ा हो और जो ऊर्जा भी हो, उनमें है। क्योंकि प्रधानमंत्री आप देखेंगे वो महाराष्ट्र हो या झारखंड हो, उन्होंने ऐसे व्यक्ति को मतलब चुना है जो नेतृत्व देने के लिए सरकार को, जिनमें ऊर्जा है। क्योंकि सरकार के पीछे सबसे बड़ी चीज है ऊर्जा। आज अगर केंद्र सरकार की हम बात करें, एनडीए सरकार की, एक बड़ी खासियत जो पिछले जितने सरकार आए गए उससे सबसे ऊर्जा, और ऊर्जा जो सीधा प्रधानमंत्री से आती है। यहाँ भी क्योंकि यूपी बहुत बड़ा राज्य है और इतना बड़ा राज्य, इतने बड़े जनसंख्या, इतने समस्या, और एक एक जगह जैसे आप पश्चिम यूपी से लेकर ईस्टर्न यूपी तक समस्या अलग है, सवाल अलग अलग है। अगर सबको ये करके चलना होगा तो आज अगर हम जिन लोग आज शपथ ले रहे हैं, जिन लोगों को आज चुना गया है, अगर आप उनकी एक्सपीरियंस देखेंगे, उनकी बैकग्राउंड देखेंगे, और जिस कम्युनिटी की भी एक प्रकार से वो नुमाइंदे में हैं, तो मुझे लगता है एक कॉम्पोजिट मिनिस्ट्री आज बनाया गया। जो आपने कहा सबको साथ लेके चलने की बात, जो ऊर्जा की आप बात कर रहे हैं, हमें मंच पर अभी वही ऊर्जा नजर आई। जो देश में, पूरे देश में जितने भी भाजपा प्रतिष्ठित राज्य हैं, तमाम जो मुख्यमंत्री हैं इस वक्त यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। हम देखा सर्बानंद सोनोवाल, शिवराज सिंह चौहान, रमन सिंह और देवेंद्र फडणवीस। इस वक्त हमने देखा कि मंच पर तमाम जो मुख्यमंत्री हैं, मनोहर पर्रिकर, उन्होंने हाल ही में गोवा के मुख्यमंत्री के रूप में पद की शपथ ली है, तो वो भी सब यहाँ पहुंचे हुए थे। किस तरह से देख रहे हैं शपथ ग्रहण समारोह? अगर हम बात करें योगी का राज तिलक, तो वाकई एक राज तिलक हो रहा है। It's symbolic of the organizational unity that BJP wants to present at a time when the opposition is really crumbling down. Here we see all the state leaders, national leaders coming on the same platform to for the swearing in ceremony of this new leader of Uttar Pradesh. So how do you see it as an important symbol? Yeah, you just mentioned the names of the chief ministers, new chief ministers Assam, Sarbananda Sonowal. You mentioned Maharashtra CM. Devendra Fadnavis. These are all faces of today's young leadership of BJP who are now known for governance. See, but the most important thing is not fighting elections, winning elections, getting majority. These parties have done before. But you can see the record of Fadnavis in Maharashtra. And the recent civic election was a kind of a test on the chief minister and his government. So therefore, today when you see this team which is just taking over, and the kind of promises that have been made, because when you get a mandate like this, there are huge expectations. That's right. And those huge expectations need sheer hard work. That is something that the Prime Minister has been emphasizing at every level, within the party, outside the party, at every fora. Prime Minister has always said, sheer hard work is necessary, not Harvard, but hard work. Right. Mr. Narayan, if I can come to you, and as Shekharji just mentioned that UP is a big state. The expectations are sky high given the huge mandate that BJP has received. And we will, of course, talk more about Yogi Adityanath as a leader. But let's, for a moment, also turn to KP Maurya and Dinesh Sharma, who have been chosen as deputy chief ministers. I believe it is unprecedented in Uttar Pradesh history. And help us understand the administrative significance of having two deputies. कुछ वर्ष पहले उत्तर प्रदेश को बांटने की बात हुई थी, और इसीलिए बांटने की बात हुई थी कि आजमगढ़ में रहने वाले व्यक्ति की महत्वाकांक्षा और अपेक्षाओं को गाजियाबाद में रहने वाले आदमी समझ नहीं पाते। ये बहुत संवाद की कमी है। बुंदेलखंड में क्या हो रहा है इसकी खबर पश्चिम उत्तर प्रदेश तक। It is not a homogeneous state. So होमोजेनियस भी नहीं, और दूरी बहुत बड़ी स्टेट है। कई यूरोप के कई देशों को मिला के एक उत्तर प्रदेश बनता है। तो उस दृष्टि से देखा जाए, एक ही मुख्यमंत्री हो जिसको नीतिगत फैसले भी लेने हो, जिसको प्रशासनिक नेतृत्व देना हो, और जिसको पब्लिक फेस भी बने रहना हो, सार्वजनिक कार्य, तो एक बहुत बड़ा दबाव मुख्यमंत्री पर हो जाता है। मैं समझता हूँ कि बहुत ही दूर की सोच के साथ एक तय किया गया है। और जहां तक जानकारी मिली है कि शायद काम का बंटवारा भी क्षेत्रवार होगा, कि एक उप मुख्यमंत्री एक क्षेत्र देखेंगे, दूसरे दूसरा क्षेत्र देखेंगे, और मुख्यमंत्री स्वयं तीसरा क्षेत्र। इस तरह 3 क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश को प्रशासनिक रूप से बांटकर काम का बंटवारा किए जाने की योजना, ऐसी चर्चा में अभी ऐसा कोई स्पष्ट संकेत नहीं आया है। और ये यूपी के लिए बहुत अच्छा होगा। जैसे हम लोग पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं, और हर काम के लिए अगर हमको ईस्ट यूपी की तरफ भागना पड़े तो बड़ा समय ऊर्जा लगती है। तो अगर इस तरह से नेतृत्व मिलता है कि जो उस क्षेत्र पर ध्यान दे सकता है, तो एक बहुत अच्छी बात होगी। जी मिस्टर नारायण, यहीं पर अगर हम ये भी बात करें इन पर्टिकुलर पर्सनालिटीज की, केपी मौर्य की बात करें और दिनेश शर्मा की बात करें, किस तरीके का अनुभव, व्हाट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस डू दे ब्रिंग विद देम टू दिस पोजीशंस ऑफ डेप्यूटी चीफ? मेरा इसमें मानना एक बड़ा फर्क सा है। हो सकता है कि राजनेताओं को मेरी बात उतनी अच्छी ना लगे। राजनीतिक नेतृत्व दिशा दिया करता है,
सरकार चलाने का काम तो ब्यूरोक्रेसी करती है। अगर आप अच्छी ब्यूरोक्रेसी को सेलेक्ट करते हैं और उस पर सख्ती से अपना शिकंजा कस के रखते हैं और उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस बना के रखते हैं तो डिलीवरी होती है। आप ये सोचिए कि राजनेता पॉलिसी बनाए, एग्जीक्यूशन भी करे तो संभव नहीं है। प्रधानमंत्री दिल्ली में बैठ के पूरा देश चलाते हैं तो खुद वो जाके मॉनिटरिंग नहीं कर सकते, लेकिन अगर उनकी डायरेक्शन क्लियर है, विजन क्लियर है, ब्लूप्रिंट क्लियर है तो काम होने लगते हैं। तो मैं समझता हूं कि जो भी इन लोगों के अनुभव है, दिनेश शर्मा तो लखनऊ के मेयर थे और मौर्य, वो अपनी जगह है, लेकिन अभी सवाल है, बहुत बड़ी चुनौती योगी आदित्यनाथ के लिए भी और दोनों मुख्यमंत्रियों के लिए कि वो किस तरह की ब्यूरोक्रेसी को चुनते हैं, किस तरह का रोड मैप तैयार करते हैं। अभी जैसे किसानों के कर्ज माफी का सवाल है, अब ये ठीक है, चुनाव में बहुत से वायदे किए जाते हैं, पर ये कितना प्रैक्टिकल होगा? फिर सारे राज्यों से डिमांड उठेगी, बैंकों की सारी अर्थव्यवस्था भी गड़बड़ाएगी, तो इसका और रैशनल तरीका क्या हो सकता है? और एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, और बड़े तकलीफ के साथ कहना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश का जो ढांचा है वो पिछले 10 सालों में, 15 सालों में बहुत गड़बड़ा गया है। केंद्र का जो रुपया, जो राजीव गांधी कहा करते थे कि 14 पैसा जमीन तक पहुंचता है, केंद्र से जाने वाले बहुत बड़ी रकम का बहुत थोड़ा हिस्सा लागू हो पाता है। इतना भ्रष्टाचार हर स्तर पर व्याप्त हो गया है कि उससे निपटना इन तीनों के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी कि किस तरह से प्रशासनिक व्यवस्था में परिवर्तन लाते हैं कि जो डिलीवरी हो सके और ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता आ सके। बिल्कुल, एक कुशल प्रशासन देने की बात यहाँ पर है जो जनता इस वक्त चाहती है अपने सरकार से। शेखर जी, वही बात इस तरह हो रही है कि लगातार बात हो रही है एजेंडा 2019 की, और उसमें कहा जा रहा है कि काफी सोच विचार करके इन 3 नामों को घोषित किया गया। 325 जो विधायक जीत कर आए थे उनमें से किसी को चुना नहीं गया। आपको क्या लगता है कि क्या नए तरह के समीकरणों का ख्याल रखा गया है पार्टी की ओर से? संतुलन बनाने की कोशिश है, एक तरफ है फायरब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ, तो दूसरी तरफ इन दोनों प्रदेश अध्यक्ष, डिप्टी सीएम यानी मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष केपी मौर्य और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के जरिए एक संतुलन बनाने की कोशिश होगी। और जो परंपरागत राजनीति है, हम यहाँ पे उसको विफल किया इस बार, लेकिन फिर भी क्या वो चीजें भी ध्यान में रखी गई हैं? नहीं, बिल्कुल समीकरण, सामाजिक समीकरण तो ध्यान में रखा गया है, साथ साथ व्यक्ति का भी अनुभव, व्यक्ति का काबिलियत और काबिलियत कितने हैं। और दूसरी चीज जो है कि ये सारी चीजों को आप जब एक सरकार में जोड़ने की जो प्रयास करेंगे, क्योंकि एक होमोजेनियस टीम बनना चाहिए, जो एक टीम वर्क की भी जरूरत है। तो खास करके अगर आप केशव प्रसाद मौर्य का देखा जाए, उन्होंने बहुत, उनकी जीवन जैसे हमारे प्रधानमंत्री शुरू किए थे चाय बेचते बेचते, वैसे इनका भी जीवन बहुत, और अच्छी पिछड़े वर्ग से वो बिलोंग करते, और उनका अपना राजनीतिक सफर और अपने जीवन में जो व्यक्तिगत सफर जो है एक प्रकार से एग्जाम्पल है। तो उनको जब आप उप मुख्यमंत्री की जो दायित्व देते, एक मैसेज भी जाता है वो मासस को कि एक गरीब से गरीब परिवार किस तरह अपने राजनीतिक जीवन में सफर करके यहाँ तक पहुंचा है। और बार बार जब हम उस स्तर से जब लोग ऊपर उठ के आते हैं, वो कभी नहीं भूलते हैं वो क्या समस्या है, क्या है, क्योंकि हम शहर में रहते हैं तो हम अपने एक एकेडमिक व्यू लेके आते हैं, लेकिन दूसरा जब एक राजनेता अपना जब अपने दिमाग लगाता है कि भाई, क्योंकि हर प्रॉब्लम्स का कई सॉल्यूशंस होते हैं, कौन से सॉल्यूशन किस प्रॉब्लम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वो जो अपने लाइफ के, क्योंकि ये मैं इसलिए ये कह रहा हूँ, आप ले लीजिए जैसे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थे एमजी रामचंद्रन। एमजीआर एक फिल्म अभिनेता थे, लेकिन उनके जो पर्सनल लाइफ में जिस तरह वो एकदम गरीब से ऊपर लेके आए, और उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन इस देश के रहा है ये जो मिड डे मील स्कीम, ये मिड डे मील स्कीम जो तमिलनाडु में उन्होंने पहली बार शुरू किया, वो अपने पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस के, क्योंकि उनकी माँ ने बहुत घर घर में काम करते थे, उनको एक दिन के एक मील के लिए, एक खाना के लिए, मतलब एक लंच के लिए इतना परिश्रम करते। तो जैसे वो मुख्यमंत्री बने, पहला काम वही किए कि हर बच्चे को जो स्कूल आता है उसको मिड डे मील स्कीम दिया रहे। पहले बहुत विरोध हुआ, क्योंकि ये क्या है, ये तो कोई प्लान एक्सपेंडिचर नहीं है, इतना तक इंदिरा जी ने भी इसको विरोध किया उस समय। फिर बाद में आज ऐसा कोई राज्य नहीं है ये कार्यक्रम आज लागू नहीं हुआ। तो ये मैं इसलिए ये उदाहरण दे रहा हूँ एमजीआर का, कि जब नेता जैसे केशव प्रसाद मौर्य जो अति गरीब से जो जब आते हैं, वो अपने आप अपने पूरा तजुर्बा, अपने एक्सपीरियंस, और कैसे सरकार के साधन, कैसे गरीब को कैसे मदद कर सकता है। And Shekhar ji, here if I can ask you, one of course is that they bring a lot of experience with themselves, coming from challenging background. If you talk about the common man, when they see such people occupying leadership position, what kind of relation, the way in which they can relate to the leader? This leader is not coming from an affluent family. He's coming from a context like
one's own. What kind of a connect do you think it forms between the people, the common man, similar to the background that the leader is coming from, and the leader who occupies the top position at this stage? See, the first feeling that comes is, here is one of us. One of us. And that the feeling one of us also, motivates other younger generations. They see, well, it's possible if you can get the benefit of good education, if you can take the benefit of it, if you work hard for it, you can reach where your own elder brother has reached. It becomes a role model. So he becomes a role model, and that in itself. And second thing, what happens is people also feel that here is somebody who will understand our problem. Here is somebody who will not just speak down to us, who suffered as we who will really appreciate our problems, and particularly Eastern UP, जिस क्षेत्र को ये प्रेजेंट करते हैं, आप वहाँ पे इतनी समस्याएं हैं, बेरोजगारी भी अगर पश्चिम और पूर्व देखेंगे उसमें भी अलग अलग समस्याएं, अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं। तो ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेकर लोगों के, क्योंकि एक नेता का बड़ा काम होता है सुनने का, कि भाषण तो देते ही हर मंच पे, लेकिन सुनने का काम, जब आप अपने चुनाव क्षेत्र जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, उनकी समस्या बताएंगे, किसानों को समस्या, खास करके किसानों को, क्योंकि किसान को बताने वाले बहुत हैं, भाई आप ये कर दो, वो कर दो, लेकिन पहले तो उनकी जो प्रैक्टिकल जमीन पे क्या प्रॉब्लम है, मतलब इट इज लिटरली द ग्राउंड प्रॉब्लम। तो ये दिस इज अ बिग थिंग दैट विल हैपन। आपने पूर्व की बात की, पश्चिमी बात की, लगातार मीडिया रिपोर्ट्स भी आ रही हैं कि एक लंबे समय के बाद, कह सकते हैं 15 साल के बाद, जो पूर्वांचल है वो पावर सेंटर बनने जा रहा है। क्योंकि चाहे राजनीति देश की हो या प्रदेश की, अगर हम बात करते हैं, जो हमेशा जो सियासी नतीजे जिसको प्रभावित करते हैं वो होते हैं पूर्वांचल की राजनीति, और पूर्वांचल में खासा प्रभाव हम देखते हैं योगी आदित्यनाथ का। किस तरह से देखते हैं कि जब पूर्वांचल के मुख्यमंत्री इस वक्त आ रहे हैं, तो किस तरह से उस क्षेत्र के विकास के बारे में, उस क्षेत्र की आकांक्षाओं के बारे में खासा अब लोगों का ध्यान आकर्षित होने वाला है? देखिए, आदित्यनाथ जी ज्यादातर गोरखपुर से 5 बार चुन के आए हैं, 5 टाइम MP हैं, तो उस इलाके के जो प्रॉब्लम्स रहे, उस इलाके के जो क्योंकि बात क्या है कि आज के मीडिया ने ज्यादा उस पर फोकस नहीं किया है। इतने साल जब वो पार्लियामेंट में रहे हैं, ये नहीं है कि केवल अपनी एक आइडियोलॉजी या विचारधारा के उन्होंने मामला उठाया, कई मामले उठाए हैं जिसमें डिफेंस सुरक्षा से लेकर कई प्रॉब्लम्स पे उन्होंने, इनफैक्ट एक मीडिया का ये भी आ गया स्टैटिस्टिक्स, कितने प्रश्न उन्होंने पूछने किस किस सब्जेक्ट पे। तो इसका मतलब है आदित्यनाथ जी ने भी काफी बाकी सब्जेक्ट्स को भी स्टडी किया है, ये नहीं केवल एक विचारधारा को उन्होंने। और इसमें मैं जोड़ना चाहूंगा कि सांसद के रूप में क्षेत्र का विकास करना संभव नहीं होता, क्योंकि सांसद के पास राशि भी सीमित होती है, और अगर राज्य की सरकार दूसरे राजनीतिक दल की हो तो वो प्रभावी नहीं हो पाता। ऐसी स्थिति में जब वो उस इलाके को समझते भी हैं, सांसद भी रहे, और केंद्र में राज्य में सरकार उनकी है, अब ये परीक्षा की घड़ी है कि देखना होगा कि वो कैसे अपने क्षेत्र का विकास करते हैं। नारायण जी, also till some time back, Uttar Pradesh was almost, the name was synonymous with corruption and the work not getting done, getting stuck in the bureaucracy. Now, you've been an anti-corruption crusader yourself in your career. How big a challenge do you think it is for Yogi Adityanath? Because, as we mentioned, after a huge mandate, people want change, perhaps sometimes even overnight. So how big, especially on the corruption front, how big a challenge do you think it is for them? Number one, परिवारवाद से कोई राजनीतिक दल अछूता नहीं। अभी पंजाब का जो चुनाव परिणाम आया सामने है, और यूपी ने भी देखा, अखिलेश की इंटेंशन अच्छी रही होंगी, ही वाज अ नाइस पर्सन, मगर पूरे परिवारवाद ने खत्म कर दिया उनके दल को भी और राजनीति को भी। तो सबसे बड़ी न्यूज़ फॉर फैमिली फ्यूड देन बिल्कुल नहीं, फ्यूड के अलावा जिस तरह उनका इंटरफेरेंस था कॉन्ट्रैक्ट्स में, सारी चीजों में बहुत ज्यादा करप्शन उस तरह से हुआ। योगी आदित्यनाथ के साथ मोदी जी की तरह एक बड़ी खासियत ये है कि इनका तो परिवार से कोई लेना देना नहीं है, बहुत जमाना पहले 300 बरस पहले परिवार छोड़ चुके, तो उनका फोकस परिवार को बढ़ाने पे तो रहेगा नहीं। अब रही बात बाकी करप्शन की, इस मामले में मेरा बड़ा बुनियादी मानना ये रहा है कि हम आज भी कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर को लेके आगे चल रहे हैं। मैंने कहा कि ब्यूरोक्रेसी सरकार चलाती है, लेकिन ब्यूरोक्रेसी को डायरेक्शन देने का काम लीडरशिप का होता है। आज जो यूपी में व्यवस्था है, जो कि मैं ब्रज क्षेत्र में हेरिटेज कंजर्वेशन का काम काफी बड़े स्केल पर 10-12 साल से कर रहा हूं, और मुझे देख के बड़ी तकलीफ होती है कि जो लोग प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते हैं, जो लोग प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करते हैं, उनकी निगाह सिर्फ पैसा खाने पर होती है। कितना % कमीशन हम खा लें, ना तो क्वालिटी में इंटरेस्ट है,
ना उसकी मेंटेनेंस में है, ना एस्थेटिक में है, ना डिलीवरी में। अगर it's naturalized, corruption is naturalized, it's part of the system, there's nothing मैं बराबर अपने कॉलम्स में लिखता रहूं और जो भी संभावित लोग हैं प्रधानमंत्री के कार्य में उनको कहता हूं कि इन चीजों को बहुत तेजी समझना पड़ेगा। योगी आदित्यनाथ एक क्रांतिकारी नेतृत्व वाले व्यक्ति हैं। भ्रष्टाचार को अगर उनको निपटना है यूपी के, तो उनको प्रशासनिक व्यवस्था में पारदर्शिता लानी पड़ेगी, अकाउंटेबिलिटी लानी पड़ेगी, ट्रांसपेरेंसी। और देखिए एक बात और है, गवर्नेंस में अगर सर्विलेंस ऐड कर दिया जाए, अगर जागरूकता ला दी जाए, जनता को मौका दिया जाए कि आज मेरे गांव में सड़क बन रही है, क्या मुझे पता है कितने इंच मोटा रोड़ा पड़ेगा, उसमें कितना तारकोल पड़ेगा, कितना सीमेंट लगेगा, मुझे जानकारी नहीं है। वो 4 इंच काम करके चला जाता है, बारिश में सड़क बह जाती है। क्या हम गांव के बेरोजगार नौजवान, दूसरी एक और चीज बड़ा इंपॉर्टेंट कहना चाहता हूं, आज भारत सरकार और राज्य सरकारें बहुत बड़ी रकम पेंशन में दे रही है। पेंशन में जिनको दे रही है वो लोग 60 साल पे रिटायर होकर खाली बैठे, अनुभवी लोग हैं, इंजीनियर्स हैं, एकेडमिशियंस हैं, स्कॉलर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, खाली बैठे। दूसरी तरफ गांव की पीएचसी नहीं चल रहे, गांव में स्वास्थ्य केंद्र नहीं चल रहे, गांव में स्कूलों की बुरी हालत है। आज यूपी में एजुकेशन का स्टैंडर्ड अगर आपको जानकारी ले तो शॉक्ड रह जाएंगे कि हाजिरियां लग रही हैं, एग्जाम हो रहे हैं, क्लास में पढ़ाई नहीं हो रही है, कॉलेजों में, स्कूलों में। इस व्यवस्था को बदलने के लिए जिस तरह की सर्विलेंस चाहिए, क्या हम उन रिटायर्ड लोगों को उसमें एंगेज नहीं कर सकते? ऐसे इनोवेटिव आइडियाज लाके चेक एंड बैलेंस क्रिएट करने पड़ेंगे, तब भ्रष्टाचार। And you mentioned engaging experienced people who may be elder. Also, one of the issues, if we talk about the youth, one of the poll plank has been the issue of unemployment. I mean, a lot of young people have to go out of Uttar Pradesh to Bombay, to come to Delhi to find work, and on that front, and it becomes very difficult for them to survive because metropolitan lifestyle is very expensive. That's right. The amount of salary, the wages they get is peanut. So poor people are in miserable condition. They lose clean air, good food, family atmosphere, and they have to struggle in slums of Delhi or Bombay or Bangalore. Now, providing employment is not a magic which can be done overnight. That's right. Yogi Adityanath can't do it overnight. But if we ensure that the developmental fund which is being allotted to UP or which is being generated by their revenue is properly utilized, there will be enough employment generated for the people. And of course, the priorities of development will also have to be changed accordingly. अब बिल्कुल जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र में सरकार से बढ़कर है जनशक्ति और तमाम तरह की बातें, उन्होंने कहा कि विकास के स्वतंत्रता आंदोलन में अब वैसे आंदोलन की जरूरत है जिसमें स्वतंत्रता आंदोलन जरूरत है और लोगों की भागीदारी की जरूरत है। किस तरह से लगता है कि जनता, जो उत्तर प्रदेश की जनता है, भारी संख्या में बाहर आई, वोट दिया और सरकार को बनाई, लेकिन अब वो जनता जो बदलाव की बयार की हम बात कर रहे हैं, जो विकास की बात हम कर रहे हैं, उसमें भी सामने आकर एक अपना एक अहम रोल निभा सकती है। किस तरह से कोशिश की जा सकती है? बिल्कुल, देखिए जैसे प्रधानमंत्री बार बार ये बात रखे हैं, सबसे जो मानवता के लिए सबसे बड़ी चुनौती जो है वो गरीबी है, और गरीबी से ज्यादा अगर कोई प्रॉब्लम जो मतलब ये है वो है अवसर ना मिलना। अगर सबको अगर अवसर आप दे सकते हैं शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, घर अपना छोटा घर बसाने के लिए, इतना अगर बेसिक जो चीजें आप और कर देंगे, अवसर दे देंगे, तो बाकी वो अपने आप कर लेगा। तो ये है असली एम्पावरमेंट। तो इसके ये तो सरकार अपने साधन से ये करेगी, लेकिन साथ साथ हर व्यक्ति को, वो किसी भी जात का हो, किसी भी समुदाय को, इसको फायदा लेना है, इस अवसर को उपयोग करना है, क्योंकि ये भी बहुत जरूरी है। क्योंकि ज्यादातर हमारे जो एक मेंटल एटीट्यूड जो बन गई है, जो प्रधानमंत्री अपने भाषण, कई भाषण में ये दोहराते रहते हैं। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में भी बताया कि आप अवसर दीजिए, उपकार मत करिए। हाँ, वही अवसर दीजिए, और लोगों को भी उसको अवसर को उसका भी एक एटीट्यूड चेंज होना चाहिए। क्योंकि लगता है भाई सरकार को सब कुछ करना है और हमें बस लेने का काम हमारा है, बस सरकार को देने का काम है। लेकिन इसमें भी बदलाव आनी चाहिए। सरकार जो चीजें आपको उपलब्ध करेगी वो करेगी, लेकिन आपको भी, मतलब खास करके मैं ये बात ये कह रहा हूँ, क्योंकि जैसे जैसे सिस्टम चेंज होंगे, जैसे सुविधाएं बढ़ेंगे, जैसे पारदर्शिता होगी, सिस्टम्स में सुधार आएगी, लेकिन लोगों को भी उसको पूरा इस्तेमाल करना है। अगर शिक्षा आपको व्यवस्था मिल रही है, जिन युवाओं को मिल रही है, वो करनी चाहिए जी। लेकिन बड़ी दुख की बात है, कई जगह पे इसमें राजनीति घुस जाती है। जहाँ हायर एजुकेशन सेंटर्स में आप एक राजनीति की ट्रेनिंग ग्राउंड है, शिक्षा की नहीं है। तो ये आपको, अगर अफसर को आप यूटिलाइज करेंगे
तभी आप अपनी आर्थिक व्यवस्था बढ़ा सकते हैं, सामाजिक व्यवस्था चेंज कर सकते The हैं. change has to come at all And you have to levels. utilize opportunity, and that is lot to do with every individual, no matter to which community or social background. बिल्कुल विनीत जी, इस तरह से हम लगातार हमने न्यूज चैनल्स में और बैठ के आराम से खूब चर्चा की उत्तर प्रदेश की उसकी चुनाव की, लेकिन इस तरह से क्या देख सकते हैं कि लोकतंत्र की हम बात कर रहे हैं, अगर हम सिर्फ भाजपा की जीत की बात ना करें, अगर हम सिर्फ एक बड़ी बहुमत की बात ना करें, हम कह सकते हैं कि एक तरह का सामाजिक बदलाव हमने देखा। जो लगातार जिस बात के लिए यूपी की जनता को दोष दिया जाता था, पारंपरिक राजनीति की बात जिस तरह से की जाती थी, परिवारवाद को देना और जो जातिगत समीकरणों को बढ़ावा देना, चाहे कितनी भी विकास की बात हो, क्योंकि विकास एक बहुत ही जटिल मुद्दा है जिसको अक्सर जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उसको उठाने से हमेशा वो घबराती रही हैं और बात वहीं आ जाती थी परिवारवाद की और जातिवाद की। लेकिन इस बार हम देख सकते हैं कि एक चुनाव था, एक चुनाव की तरह नहीं था, एक लोकतंत्र के पर्व के साथ साथ एक सामाजिक बदलाव की तरह था, जो कि आप उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं। किस तरह से आपने देखा जमीनी तौर पर, वहां जमीन पर वो बदलाव होता जो इस वक्त हम मंच पर देख रहे हैं? देखिए, सबका पहला टेस्ट, लिटमस टेस्ट था नोटबंदी जी। जिस वक्त नोटबंदी आई, काफी लोगों ने हल्ला मचाया कि गलत है और फ्लॉप शो है वगैरह, और मैंने एक कॉलम लिखा था उस वक्त मुस्तफा कमाल पाशा टर्की का रेफरेंस देते हुए कि जब उन्होंने अपने एचआर मिनिस्टर से पूछा ह्यूमन रिसोर्स कि हम कितने समय में टर्की को अंग्रेजी स्पीकिंग बना सकते हैं, मॉडर्न बना सकते हैं, को एजुकेशन है, तो उसने कहा साहब 40 साल लगेंगे। मुस्तफा कमाल पाशा ने कहा मैं 2 साल में करके दिखाऊंगा, और ब्लैक बोर्ड लेके पेड़ों के नीचे खड़े हो गए और पढ़ाना शुरू कर दिया। जब कुकिंग गैस आई थी लोगों ने विरोध किया, इससे जहर है खाने में। जब कंप्यूटर आया लोगों ने विरोध किया, सेलफोन आए विरोध किया, और फिर पूरे समाज ने एक्सेप्ट कर लिया। तो नोटबंदी जब हुई तो बड़ा ये लगा कि साहब काफी सोशल मीडिया में भी अटैक हुआ, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी जैसे लोगों ने काफी तूफान मचाया। लेकिन मैंने देखा गांव-गांव में जो घूमता हूं क्षेत्र में, कि आम आदमी उससे बहुत खुश था, और आम आदमी को ये लगा कि पहली बार एक प्रधानमंत्री है जो कड़े निर्णय ले सकता है और जो ये मैसेज दे रहा है कि मेरे इन कामों से गरीब को फायदा होगा, और जो लोग काला धन इकट्ठा कर रहे हैं, गड़बड़ कर रहे हैं, उनके पैसे को बाहर निकाला जाएगा। ये इतना सटल मैसेज था जिसमें न जाति थी, न धर्म था, न संप्रदाय था, केवल एक बात थी कि हमारे विकास की संभावना हमें दिखाई दे रही है, ऐसा लोगों ने। और वही अभी 2 हफ्ते पहले की बात है, मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुस्लिम इलाके में बड़े पेड़ खरीदने गया, हजारों की तादाद मुझे पेड़ खरीदने थे, मैं अपनी टीम को लेके गया। वहां सारे मुस्लिम नर्सरी ओनर्स हैं। मैंने उनसे पूछा कि आपके यहाँ क्या हवा है, बोलते हैं जी इस बार तो कमल खिल रहा है। उसी दिन हमने तय कर लिया था कि ये रिजल्ट ऐसे आने वाले, और काफी बड़ी तादाद में मुस्लिम महिलाओं ने भी ये बात कही कि 3 तलाक के मुद्दे पर जो प्रधानमंत्री ने मुद्दा उठाया है वो महिलाओं के हक का मुद्दा है, वो कोई सांप्रदायिकता का मुद्दा नहीं है। आप 3 तलाक दे के किसी को घर से निकाल दें और उसको लावारिस सड़क पर छोड़ दें, ये महिलाओं को एक्सेप्टेबल नहीं था। तो कहने का मतलब यह है कि हर नीति अगर विकास की तरफ ले जाने वाली है तो आम आदमी उससे जुड़ेगा और वो जातिवाद के और संप्रदायवाद के दायरे से बाहर निकलेगा, और इसके संकेत मिल रहे हैं। Right, and also quite rightly, people from all sections of society have given a huge mandate, and one of the motivations was also that perhaps having a strong government at the center and same party ruling in the state will improve the communication, will improve the efficiency of development. What do you say on that? I mean, how because Uttar Pradesh needs that that very goes badly. without saying, but that, as Mr. Shekhar rightly said, that also gives you a lot of challenge. Right. Now the expectations are so much that 2019, before 19, Yogi Adityanath's government will have to deliver a visible change. If they're able to deliver, people will still galvanize and rallying behind them. But if they, of course, voters are very impulsive. You know, they get impatient very quickly. You cannot expect moon overnight, as I've been telling, employment, other things. But if the direction is right and the message goes across that, well, we mean business, we want to deliver, people will be still going ahead. But you also see that the voters have specially shown interesting maturity this time. They've really risen above their different lines that earlier would divide them. And they've chosen. That happened in 2014 also. Prime Minister Modi's victory was partly because he gave reasons for hope. He gave a vision where he said, I'm going to give you, because I was in Varanasi that time. We're also restoring some part of Varanasi heritage. And it's a hugely Muslim population area. And I was surprised that the weavers, the artisans from Muslim community were admiring Modi. That was surprising. That's right. And I asked them why. So are these stereotypes that we talk about, Muslim vote bank or a particular community vote bank, so is this also breaking the stereotype It that has in fact... to. It has to. Shubhendu, the time has come that this stereotype
politics of minority, majority. See, we should treat human being as human being. We are all citizens of the country. Constitution guarantees equal right to everybody. Why can't we talk of development, equal right, dignity of human being? Which are common to all communities. Common to all community. When unnecessary we go on harping on minority. I don't know whether I should be saying this on channel or not, but in last 10 years when I used to go to the secretariat in UP, the bureaucrats were very, very offended with the fact that certain community people would barge into their office without appointment and humiliate them, dictate them, misbehave with them because they were being pampered by the leadership. This should not be allowed to anybody. If BJP workers today do the same thing as Yogi Adityanath and Venkaiah Naidu this morning when they were addressing press conference yesterday, they said बिल्कुल बाहर निकल जाइए एंड योगी आदित्यनाथ टोल्ड डीजी पुलिस कि कोई हंगामा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा वोट के नाम पर। तो अगर हम पहले दिन से इस बात के बारे में स्पष्ट हैं कि उत्साह और खुशी अपनी जगह है लेकिन उसके साथ एक अनुशासन चाहिए, एक डिसिप्लिन चाहिए, तो आप कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन आप अपीसमेंट के नाम पर और आप लोगों को छूट दे रहे हैं। मैं किसी राज्य का एक नाम नहीं लेना चाहता पर एक राज्य में गया और वहां के डीजी पुलिस को और पुलिस कमिश्नर को और विजिलेंस कमिश्नर को मैंने लंच पे बुलाया। हम चारों जने लंच करने बैठे और उन्होंने कहा जी हमारे मुख्यमंत्री का आदेश है कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का आदमी अगर रेप मर्डर करे तो भी कुछ मत करो और दूसरी कम्युनिटी के लोग अगर बिना हेलमेट के जा रहे तो चालान कर दो। बोले हम कैसे पुलिसिंग करेंगे? अगर इस तरह की मानसिकता से आप देश को चलाएंगे तो बंटवारा ही होगा, फिर विकास नहीं होगा। विकास करना है तो आपको समाज को बीच में रख के चलना पड़ेगा। जी बिल्कुल, तो सबका साथ सबका विकास और चुनौतियों का यहाँ पर जिक्र हो रहा है कि किस तरह से जो उत्तर प्रदेश के जो नए मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ वो किस तरह से चुनौतियों से पार पाएंगे। शेखर जी, बिल्कुल डेवलपमेंट की बात हो रही है। केंद्र सरकार की तमाम ऐसी योजनाएं जो वाकई बेहद सफल हैं और वाकई जमीनी स्तर पर लोगों को बेनिफिट दे रही हैं, लोगों को लाभ पहुंचा रही हैं। सुकन्या योजना, जनधन योजना एक बड़ी चुनौती होगी मुख्यमंत्री के लिए, उनकी पूरी टीम के लिए कि उसको सही तरह से लागू किया जाए। साथ ही साथ नौकरशाही का जिक्र किया विनीत जी ने कि उस नौकरशाही से पार पाना वो किस तरह से मुमकिन हो पाएगा? नहीं, जैसे कल जैसे विनीत जी कह रहे थे कि आदित्यनाथ जी ने खुद डीजीपी को कहा, कल ही उन्होंने मतलब शपथ लेने से पहले ही अपने आदेश दे दिए कि इसके नाम पे आप कुछ ये मत कीजिए। नहीं, जब देखिए क्या है, हमारे जो ऑफिसर्स सक्षम है, हमारी पुलिस फोर्स सक्षम है, हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम सक्षम है। अगर क्लियर डायरेक्शन आ जाए राजनीति मतलब जो पॉलिटिकल नेतृत्व से कि आपको जो मतलब आइन कानून को मेंटेन करना है और दूसरा आपको जो आप अपने काम प्रोफेशनली करना है, अगर ये डायरेक्शन अगर लीडरशिप से क्लियर आ जाए तो उसके बाद मुझे लगता है, अभी तो पुलिस व्यवस्था वहां चेंज नहीं हुई है, यही पुलिस व्यवस्था आपको काम करेगी। अभी तो कोई अफसर की चेंज नहीं हुई है, वही सिस्टम चल रहा है जो पिछली सरकार की, लेकिन वो इफेक्टिवली हैंडल करना शुरू कर देंगे। खास करके मैं उदाहरण दे रहा हूँ, जो मंत्री थे प्रजापति, बिल्कुल 1 महीने से मतलब चुनाव प्रचार चल रहा है, किसी ने उनको नहीं पकड़ा, फिर लास्ट को जैसे रिजल्ट आने से पहले वो लखनऊ में सरेंडर कर रहे हैं। देखिए ये इस तरह ये केवल इस तरह घटनाएं होती हैं। इसका कारण है, लगता है कि कहीं ना कहीं इनको राजनीतिक प्रोटेक्शन मिलती है, तो ये एंड होना चाहिए। दूसरी, आपने चुनौती की जो सवाल किया, देखिए कई कार्यक्रम इस पिछले 2 साल में एनडीए सरकार ने कई कार्यक्रम, स्किल इंडिया से लेकर स्टैंड अप इंडिया, कई कार्यक्रम है। जब राज्य सरकार में एक व्यवस्था बन जाती है जो इस कार्यक्रम को अब यूपी में कैसे कहां इसको लागू करना चाहिए, उस हिसाब से उसको कैसे चेंज करना चाहिए, अगर उस पर लग जाते, देखिए धनराशि की प्रॉब्लम नहीं है, जितने है वो आपको मिल जाएगा, लेकिन इम्प्लीमेंट करना। और प्रधानमंत्री इस बार जो एक मॉडल उन्होंने रखा है, यार्ड स्टिक, भाई ऐसा नहीं चलेगा कि भाई घोषणा हो गए हैं, कार्यक्रम कैसे चले ना चले वो अलग नहीं है, वो खुद मॉनिटर करते हैं। जो प्रगति की मीटिंग हुई है, कम से कम अभी 10-15 मीटिंग हो चुके हैं, जहां खुद बैठकर कैबिनेट सेक्रेटरी के साथ, अन्य सेक्रेटरी के साथ, अलग अलग राज्यों के चीफ सेक्रेटरी से बात करते हैं कि जो केंद्र स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है उसकी हालत क्या है, क्या हमने प्रॉमिस किया, कैबिनेट डिसीजन कब हुआ, कैसे हुआ। तो यूपी का तो ध्यान बहुत रहेगा प्रधानमंत्री। शेखर जी, also Yogi Adityanath will have to as they say, walk a tight rope, because he can't afford to repeat the mistakes of the previous regime. I mean, as you mentioned that he asked his workers to rein in because
There are a lot of critics who say that he perhaps represents the saffron. One wonders what will happen to Uttar Pradesh. But as you mentioned, if the focus remains on governance, focus remains on issues of development, as you mentioned, that concerns all communities, then that would be a crucial thing. So he plays a challenging role. He have to be very careful that... No, he will be very careful, and besides, he would want to succeed. See, ideology is as one place, but when it comes to large areas of governance, that requires a very professional administrative work. See, that doesn't require ideology. Because he's going to be under a lot of media and in fact, if at all, if the ideology is in question, that very ideology demands that you do antodaya, you take care of the poorest of the poor. So I think from the ideology, what he can draw, he will draw. Right. And as for his own persona, no, he cannot change his persona. That is his persona. That's right. But today we will have to estimate him as a chief minister, and his clock starts ticking right now. Right. So all his actions will be subject to scrutiny. That's right. And all his actions will be seen what is in the interest of the people. That's right. शुभेंदु, मैं एक बात कहना चाहता हूँ शेखर जी आपसे भी। मैं उन लोगों में नहीं हूं जो ये कहूं कि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी में एक इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट रहा हूं थ्रू आउट, और मैंने कभी किसी पार्टी के साथ खड़े होने की कोशिश नहीं की। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, लिखता रहूं बराबर ही। आज नहीं कह रहा कि केंद्र में और राज्य में बीजेपी की सरकार है। इस देश की एक सनातन परंपरा थी, चाहे वो आयुर्वेद था, चाहे योग था, चाहे वो ध्यान था, चाहे वो गौ रक्षा की संस्कृति, चाहे कृषि की संस्कृति थी, चाहे हमारा शिक्षा पद्धति थी। सब चीजों पर औपनिवेशिक काल में 200 साल के कॉलोनियल रूल में एक बहुत बड़ा एक विध्वंस किया गया, और आजादी के बाद भी उसको सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा गया, उसका उपहास किया गया। मैं एक छोटा सा उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूं। आज से 7 साल पहले मेरी मदर को लिवर सिरोसिस हुआ। दिल्ली के टॉप डॉक्टर्स ने कह दिया कि 6 महीने ज्यादा नहीं जिएंगी, और मेरी मदर संस्कृत की स्कॉलर थी, स्पिरिचुअल थी, बड़ी सोशल एक्टिविस्ट थी। उन्होंने कहा मुझे कोई दवाई नहीं चाहिए, एक गाय खरीद लाओ, मैं गौमूत्र पीना चाहती हूँ। उसी दिन गाय खरीदी गई, गौमूत्र पीना शुरू किया, और वो 5 साल स्वस्थ जी और अपनी मर्जी से शरीर छोड़ के गए। अभी गौ हत्या को लेकर भावनात्मक मुद्दा बनाना, सांप्रदायिकता का मुद्दा बनाना बेवकूफी है। चाहे अगर बीजेपी का वर्कर करते हैं वो भी गलत करते हैं। गाय की वैज्ञानिकता पर अमेरिका में बहुत शोध हो चुका है, पेटेंट हो चुके हैं, दवाओं के, सारी चीजों के। इसी तरह भारत की सनातन परंपराओं को लेकर जो सम्मान किया जाना चाहिए था वो नहीं किया गया, उसका उपहास उड़ाया गया। इस कारण समाज में ये भेद पैदा हुआ है। और मैं समझता हूं कि योगी आदित्यनाथ जैसे लोग हों जो रैशनली, साइंटिफिकली, लॉजिकली, ऑब्जेक्टिवली बातों को रखें और पॉलिसी लेवल पर चेंज लाए जिससे समाज का भला हो। ये किसी, अब अगर आप योग की बात लेते हैं, क्या वजह बाबा रामदेव के शिष्य पाकिस्तान में लाखों की तादाद में, वो भी कह सकते हैं कि साहब ये योग तो किस तरीके से आप अपनी बात कहते हैं, उस ऑब्जेक्टिविटी को जब सामने रखते हैं तो लोग एक्सेप्ट करते हैं। योग करने में कोई हिंदू मुसलमान का अंतर थोड़ी है, वो तो स्वास्थ्य की बात है। तो मैं समझता हूं कि ये भगवाकरण कहना दोनों के लिए, जो भाजपा, संघ या विहिप वगैरह के कार्यकर्ता, उनको भी संयम बरतना चाहिए। उनको अपनी बात तार्किक रूप से, बुनियादी तरीके से ऐसी रखनी चाहिए कि इससे समाज का कैसे भला होगा, और जो दूसरा पक्ष है उसको खुले दिमाग से उसको स्वीकार करना चाहिए। इस तरह का डिवीजन करके समाज में आप देश का हित नहीं कर रहे। आज जर्मनी चले जाइए, स्विट्जरलैंड चले जाइए, अमेरिका चले जाइए, कितनी रिसर्च भारत की वैदिक संस्कृति पर हो रही है, कितनी चीजें वो निकाल के ला रहे हैं, और हम लोग आज भी वो मजाक उड़ा रहे हैं, भगवाकरण अगर राजनीति के लिए कोई कर रहा है आप उस पर अटैक कर सकते हैं, पर समाज के हित के लिए हो रहा है तो आपको क्या तकलीफ है उसमें। जिस तरह से प्रधानमंत्री ने आई एम न्यू इंडिया, एक नए हिंदुस्तान की बात की है, उसकी झलक आपको कहीं ना कहीं यहाँ नजर आ रही है। जिस तरह से बात सबके साथ की बात हो रही है, अल्पसंख्यक की बात हुई, एक हर समाज के हर वर्ग को साथ लेने की बात हम जो कर रहे हैं, चुनौती के लिए, चुनौती के रूप में बात कर रहे हैं नए मुख्यमंत्री के लिए। लेकिन जो नए हिंदुस्तान की बात हो रही है, शायद वो तभी मुमकिन हो पाएगा जब उन चुनौतियों से वो पार पाएंगे और जो तमाम रहेगा। वही है कि नए इंडिया का जो सोच है, कम से कम जो चेहरे हम देख रहे हैं, ये कई लोग फर्स्ट टाइमर्स हैं। और आपको याद होगा जब पिछले हफ्ते जब प्रधानमंत्री बीजेपी कार्यालय गए और जीत के उनको फेलिसिटेशन हुआ, उस भाषण में उन्होंने ये बात रखी कि जो चेहरे आएंगे, जो चेहरे आपने कभी सुर्खियों में देखा नहीं होगा, जो चेहरे होंगे जो आपने कभी कोई बड़ा नाम ऐसा नहीं होगा, लेकिन ये चेहरे ऐसे होंगे जो वचनबद्ध होंगे लोगों के लिए काम करने के लिए।
वचनबद्ध होंगे सरकार की जो कैसे साधन गरीब के लिए कैसे काम करे। तो ये कमिटमेंट जो है कि क्या है कि नॉर्मली हमने जो पिछले सालों में जो क्या देखे, पॉलिटिकल पार्टी में अगर कोई के स्थान पकड़ लिया है फिर उसका चलता रहता है, कोई नए लोग ऊपर नहीं आते। लेकिन इस बार जिस तरह मौका दिया गया, कई एमएलए जो कैंडिडेट्स बने हैं फर्स्ट टाइमर्स हैं, कि क्या है जब आप नए लोगों को लाते हैं एक तो फ्रेशनेस आती है, साथ साथ उनकी ऊर्जा की हमने पहले जिक्र किया, क्योंकि उनमें जो एंथुजियाज्म होता है भाई कुछ करना है, कुछ हमें ये करना है। और जब एक एमएलए हो या मिनिस्टर हो अपने पूरा एंथुजियाज्म जाता है भाई हमें करना है, और यहाँ भी एक सरकार हो जो सरकार और उसका नेतृत्व भी ऐसा हो वो रिजल्ट्स पे देखेगी, आउटकम। Talking about energy of new leaders and energy that the youth brings into politics, Yogi Adityanath again is a leader who is known to be firebrand, very strong speaker as well. Quite young as well, and a lot of experience in the parliament. If we talk about the energy that he brings, because mostly he's referred to as the Mahant of Gorakhnath Temple, but if we talk about administrative work, if we talk about development work, people would also like to know the work that he's done already. What kind of standing does he have? Because in the media he's usually projected in a particular way. If you can give us some insight as to how is he known in the region. The thing is that a leader must be decisive, and a leader must take a lot of time to decide what he wants to and then execute it without wavering. Yogi Adityanath's personality has been, there have been occasions when the party was not happy with his statements, but he stuck to his guns. So the thing is that in UP, if we have a leader who's not influenced by his family, who's not going to be cowed down by the I mean, if I can use the word, paid media, who doesn't feel humiliated if you call him Bhagwa, he doesn't care for that. He does what he believes in. Now, if this is the trait he has already shown, and now is the opportunity for him to examine policies and programs, whether they are good for the people, whether they are relevant, whether they deliver, I'm sure he will be able to take strong decisions and stick by them. And that's the kind of leadership. And talking about that, sir, what do you think are going to be the priority issues? We know development, Sabka Saath, Sabka Vikas is the vision that is going to drive the central government, that is driving the central government, and now will also drive the new Uttar Pradesh government. But if we talk about the particular priority areas, law and order has been an issue, and we know that even before he took oaths. Even the four things is what common man wants. I mean, I'm talking about UP. Though I travel all over the country, but in UP, 24-hour power, electricity, law and order, safe drinking water, right, and healthcare. If these four things, and of course employment goes without saying, every young man wants an employment. That's a lot of youth came back to UP to vote because perhaps this was the crucial issue for them. Yes. So if these four things, and it's not difficult. It's not difficult to achieve these things. The amount of money available for all these programs is tremendous. If he can only stop the pilferage, if he can stop the corruption, if he can make the system accountable, all these things can very easily be ensured. And when you deliver these four things to the common man is happy and satisfied. Let me tell you that in UP, the entire business community, the medium scale industry, small scale industry, are only happy with two things. If you give them electricity and law and order, safe law and order condition. Common man is very happy if you give him drinking water, proper connectivity, power supply. So priority of common man are very simple. It is unfortunate that even after 70 years, and even after having spent billions, we have not been able to ensure the bare minimum what they want. And I think Modi ji's whole emphasis is they start delivering. Let me tell you one example. Once I was coming after delivering a lecture in Gujarat towards Gandhinagar, and I met a young IAS officer. I asked him, what brings you to Gandhinagar? He was a collector of a district. He said, I had gone a Commonwealth fellowship to London for a few weeks course. But in our government, the system is that Modi ji wants to hear from every bureaucrat who returns from foreign assignment, what did he learn new? And he wants others to understand and practice. As a journalist of 35 years standing, I've never heard that you go abroad, spend 2 years in Harvard or somewhere, and come back and give your experiences, presentation to a whole lot of people. I mean, so Modi ji has this knack to catch people at the right time and make sure that they deliver. So वो एक ऊपर से नीचे आ रहा है, ऊपर से आदित्यनाथ का एक फायर ब्रांड लीडरशिप है,
अगर सही दिशा में सही ब्लूप्रिंट लेके चलते हैं तो डिलीवरी होगी, ऐसा विश्वास किया जा सकता है। और विश्वास ना करने का आज कोई कारण नहीं, जब कल नहीं होगा तब इस पर विचार कर सकते हैं, लेकिन अभी मौका तो दिया जाए, देखा तो जाए कि कैसे काम कर रहे हैं। बिल्कुल, हम वाकई विडंबना जिसका जिक्र वो कर रहे हैं कि आजादी के 3 साल के बाद भी साफ पीने का पानी और बिजली की बात यहाँ पे की जा रही है। योगी आदित्यनाथ जिस पर ये सारा उम्मीदों की बात कर रहे हैं, उनके अगर हम व्यक्तित्व के बारे में बात करना चाहें, थोड़ा से आक्रामक लेकिन बेहद स्पष्टवादी नेता माने जाते हैं, एकदम बेहद स्पष्ट छवि के साथ ही साथ जनता से खासकर जो उनकी जो क्षेत्रीय जनता है उनसे निरंतर संवाद के लिए भी वो जाना जाते हैं। मैंने सुना है कि गोरखनाथ मंदिर में बैठते हैं, वो लोगों से बात करते हैं, उनकी समस्याएं सुनते हैं। किस तरह से देखते हैं आप उनकी छवि को या उनके व्यक्तित्व को? देखिए, उनके व्यक्तित्व एक जो जिस तरह नेशनल मीडिया में एक उनका एक रूप है और वहाँ स्थानीय लोगों का अलग विचार है जी। क्योंकि यहाँ पे उनको सुर्खियों में हमेशा वो इश्यूज को लेकर है जिसमें विवाद हुआ है, लेकिन स्थानीय लोग खास करके गोरखपुर में पश्चिम यूपी में बात यही करते हैं कि ये ऐसे एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं जो सिस्टम को अपने हाथ में काबू में लेकर काम कराते हैं। जो बात आज विनीत जी भी कह रहे थे, भाई आप ये अफसरों से काम लेना, व्यवस्था को मतलब फिर ये करने, इसमें इनकी जो अगर गोरखपुर की इनकी जो एक्सपीरियंस है वो ऑफिसर को छोड़ेंगे नहीं। अगर जैसे आप प्रधानमंत्री की बात करते हैं कि बार बार पूछते हैं भाई क्या हुआ, अगर कैबिनेट डिसीजन ली गए उसका क्या आगे क्या निकला, तो वैसे मुझे लगता है आदित्यनाथ जी का इनको सिलेक्ट करने में एक बड़ा कारण ये भी होगा, ये सिस्टम से प्रभावित नहीं है। हाँ, टास्क मास्टर जिसको कहते क्योंकि हैं। कई राजनेता ऐसे हैं चीफ सेक्रेटरी और अपने सेक्रेटरी से ही काम चलाते हैं, ये वैसे व्यक्ति नहीं है जो व्यवस्था को आदेश देंगे, व्यवस्था से सवाल करेंगे, पूछेंगे, हिसाब मांगेंगे, फलाना डिसीजन हुआ उसका क्या किया आपने, क्या कितनी दूरी में है, क्या कठिनाई है। तो ये एक क्योंकि ब्यूरोक्रेसी को मैनेज करना, खास करके जो राजनीतिकरण हुआ है उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में, जो ब्यूरोक्रेसी की जो हालत है, भ्रष्ट तो है ही, साथ साथ इतने राजनीतिकरण है, काम नहीं करना है, अपने अफसर्स के अपनी पोस्टिंग ट्रांसफर इसी में चक्कर में है। तो ऐसे व्यवस्था को अगर चेंज करना है तो आपको एक आउटसाइडर चाहिए। यहाँ मैं आउटसाइडर की बात कर रहा हूँ, जो आउटसाइडर टू लखनऊ और आउटसाइडर टू लखनऊ की जो पावर स्ट्रक्चर है उससे बाहर की चाहिए, वैसी व्यक्ति ही सवाल कर सकता है जिसका कोई पहले कोई लेना देना नहीं है। And we learnt about an order that has been given even before the chief minister took oath that all government officers must come on time, and this work culture needs to change. Even before there was a name of chief minister that came up. So this thing about sticking to यूपी प्रशासन को लेकर जितने मतलब हम क्या करें, मतलब हम किसी को टिप्पणी नहीं करना चाहते इस व्यक्ति मतलब इस समय, लेकिन मतलब अंग्रेजी जो इज बेटर है इसमें, लीव्स मच टू बी डिजायर्ड, क्योंकि तो ऐसी जगह पे क्योंकि सिस्टम कर सकता है ऐसा नहीं। भाई यूपी में पहले भी अच्छे अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर्स रहे, ये नहीं है कि ये सारे हम 10-15 साल की जो हालत है ये, उससे पहले अच्छे ऑफिसर्स रहे हैं, और वही आईएएस ऑफिसर्स जो यूपी से लेकर केंद्र में आ जाते बहुत बढ़िया काम करते। राइट, नारायण जी, इफ वी कैन कम टू यू, आपने काफी समय तक काम किया है, द ग्राउंड लेवल, ब्रज हैज बीन द प्लेस वेयर यू वर्कड. Help us understand, because UP again has been in news for corruption and law and order issues. Help us understand the true potential of Uttar Pradesh that the young leader Yogi Adityanath can now exploit to take really the state to greater heights. देखिए, यूपी का बहुत पोटेंशियल है, खासकर वेस्टर्न यूपी में तो रिसोर्सेज की कमी नहीं, नेचुरल रिसोर्सेज भी हैं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी हैं, एंटरप्रेन्योरशिप भी। ईस्ट यूपी डिप्राइव्ड रहा है बिकॉज वहाँ पानी की समस्या है, खेती बहुत फर्टाइल नहीं है, चित्रकूट वगैरह का इलाका, बुंदेलखंड का इलाका, और उसके पीछे बहुत बड़ा कारण करप्शन का भी रहा है, क्योंकि इतने बड़े बड़े पैकेजेस दिए गए वाटर हार्वेस्टिंग के और दूसरी चीज़ों के, लेकिन उनका इस्तेमाल ठीक नहीं हुआ। तो पोटेंशियल तो बहुत होता है, पोटेंशियल तो एक जेल का भी होता है। आप जेल के जेलर बन जाते हैं और आप उस जेल से ही परिवर्तन करा देते हैं और उसी जेल में आप गुंडा क्राइम को पनपा देते हैं। तो यूपी का पोटेंशियल बहुत है, अगर यूपी में ठीक से डायरेक्शन दी जाए तो। और एक बात और देखिए, एक हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ा एसेट है, हमारे यहाँ जो कहते हैं ना सादा जीवन उच्च विचार का जो सनातन सिद्धांत है, आम हिंदुस्तानी बहुत अपेक्षा नहीं रखता है।
थोड़े साधन में भी खुश रहना जानता है। ये दूसरी बात है कि आज की मार्केट फोर्सेस हमको जबरदस्ती कंज्यूमर कल्चर की तरफ धकेल रही है, लेकिन एक आम जीवन, आप तो हमसे उम्र बहुत छोटे हैं, पर जब हमारा बचपन था हमने बहुत सादे जीवन देखे। अच्छे संपन्न परिवारों से आकर भी हम लोगों ने बहुत सादगी का जीवन जिया है और उसमें आनंद अनुभव किया है। उत्तर प्रदेश की खासियत है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये ऐसे राज्य हैं बहुत से जहां पर लोग सादा जीवन में खुश रहना जानते हैं। अगर आप उनको मोटिवेट करेंगे, उनको प्रोडक्टिव कामों में लगाएंगे, उनका पार्टिसिपेशन इंश्योर करेंगे, तो डिलीवरी यूपी कर सकता है। एक और बात है, पूरे देश में देख लीजिए, तमिलनाडु की बात देखिए, तमिलनाडु में भारी करप्शन था, सब जानते हैं, पर करप्शन की कोई सीमा ही नहीं थी। उसके बावजूद तमिलनाडु में इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुई। क्या उसमें सरकार का कोई कॉन्ट्रीब्यूशन था? एंटरप्रेन्योरशिप तो लोगों की होती है। आप कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करें, आप लोगों को काम, बुनियादी विकास करने के माहौल प्रोवाइड करें, लोग आगे बढ़ जाते हैं। वो माहौल नहीं होगा, आप सांप्रदायिक में बांट देंगे, करप्शन में बांट देंगे, रेड टेपिस में बांट देंगे, पॉलिसी क्लियर नहीं होंगी, डिलेइंग टैक्टिक्स होंगी, तो लोग परेशान होंगे। आप व्यवस्था को ठीक कर दीजिए, लोग खुद आगे बढ़ जाते हैं। Right, and do you see Yogi Adityanath as the man for the job? Because I was just reading up that he's a science graduate, he's a priest, and he's someone who's known to not keep too many luxurious things around him. He's man of the people, interacts with them every day. I think he has sessions. Yes, so someone who's really rising from the ground. Do you think he's the man well, absolutely I appropriate have for the job? Very high hopes, and I think the people of UP have very high hope, and he has to prove, he has to come to our expectations. I mean, he has to fulfill those expectations. बिल्कुल। और इस वक्त हम देख रहे हैं, तस्वीरें भी आ रही हैं कि जो योगी कैबिनेट है वो लगातार अपनी शपथ ले रहे हैं। किस तरह से देखते हैं जो नाम तमाम सामने आ रहे हैं, सूर्य प्रताप शाही हो, सतीश महाना हो, या दिनेश शर्मा और केशव प्रसाद मौर्य, तो वहीं मथुरा से 1 लाख जो वोटों से भारी जीत उन्हें श्रीकांत शर्मा। तो हम कह सकते हैं कि अनुभव और युवा दोनों को ही तरजीह देने की कोशिश की गई है इस बार इनकी योगी आदित्यनाथ जी की कैबिनेट में। किस तरह से सकते हैं कैबिनेट के? बिल्कुल, देखिए यूपी में 403 के हाउस है, 400 से ऊपर जब एमएलएस हो, जब आपको एक मंत्रिमंडल गठन करना हो, क्योंकि आप 10% से ज्यादा मतलब 15% से ज्यादा नहीं कर सकते, तो उसको भी ध्यान रखते हुए एक एक व्यक्ति को जब आप चूज करते हैं तो कई चीजों को रखना पड़ता है। एक तो युवा की बात है, दूसरा उसमें एक्सपीरियंस भी होनी चाहिए, तीसरा अलग अलग वर्ग का भी उसमें रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, ताकि वो लगे कि सरकार एक तरफा नहीं है। क्योंकि पिछले शासन में यही बात थी जो विनीत जी ने कहा कि एक समुदाय प्रति या एक जो चुनाव के जो फैक्टर्स बताए जाते हैं, उस फैक्टर्स के हिसाब से अगर प्रशासन बने या चले, वो अच्छी ये नहीं है। तो बैलेंस रखना पड़ता है आपको। और साथ दूसरी चीज जो क्या है कि नेतृत्व को जब किसी व्यक्ति को मंत्री बनाते हैं तो उनको ये सोचना पड़ता है कि इनकी बैकग्राउंड क्या है, ये कैसे करेंगे। क्योंकि हर बार जब किसी को एमएलए टिकट देने में भी और किसी को मंत्री बनाने, ये डर हमेशा रखता है क्या पद संभालने के बाद ये कैसे काम करेंगे। और महिलाओं को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। आजकल जायसवाल और बहुत सोच है कि और खास करके प्रधानमंत्री इस पर बहुत ध्यान देते हैं उनके हमेशा, क्योंकि कोई भी आज अगर यूपी सरकार में, नए सरकार में थोड़ा सा भी कुछ गलत चीज हो जाए या कोई कंप्लेन आ जाए तो बदनामी सबकी होगी, क्योंकि मीडिया भी बहुत स्क्रूटनाइज करेगी इसको। बिल्कुल, कि इतना बड़ा बहुमत हो, लोगों की अपेक्षा भी ऐसे हो, तो छोटा सा भी गलती आपको उसमें स्कोप नहीं मिलेगा। ठीक है, आपका हनीमून पीरियड होगा जी, लेकिन हनीमून के साथ साथ सब लोग टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप से देखेंगे ये कैसे कर रहे हैं। Given that 2019 is approaching soon, so even that honeymoon period. I think I want to just recall what the PM has been saying frequently, that it's not just 2019. You know, I think okay, elections will come and go, but more important will be the kind of things that have to be done, because parties will always tend to look at from one election to another election. बट व्हेन यू आर थिंकिंग ऑफ गवर्नेंस, जब सुशासन की बात करते हैं तो वो साथ साथ कि 2 साल में क्या करना है, 3 साल में क्या करना है, 5 साल में। प्रधानमंत्री अपनी तरफ से एक 2022 की बात की है, जब हमारे देश का 75 साल हो जाएगा इंडिपेंडेंस के बाद, तो उन्होंने कई चीजें रखी है, खास करके उसमें हाउसिंग फॉर ऑल। मैं तो ये कह रहा हूं कि कोई भी केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं, एक का अगर इफ यू कैन इवन शो 25% रिजल्ट, आई एम नॉट सेइंग यू मैनेज 100%,
but even 25% of your goals can be achieved in a state like Uttar Pradesh. It will make a sea That's change. right, it's a big It state, will make I a mean. sea change That's to the right. difference to the lives of the people. Absolutely. That's it. And Whether it is power sector or agriculture sector or in employment, skill development, any sector you take. Right. So the real implementation. The phenomenal, the impact will be phenomenal. That's right. I mean, it takes time. Phenomenal. It's a huge state, and it takes time to implement programs. But in the direction that the government takes, you know, I mean, one gets an idea about the direction in which the government. We know, central government, the programs, the reforms that it has introduced. We're talking about 2022. It's still far ahead, but the direction, the vision with which one acts is going to be under the scanner. No, I'll just recall one thing. When Manohar Parrikar was defense minister here, when several schemes were announced, बार बार पर्रिकर जी यही कहते थे, खास में मुख्यमंत्री होता गोवा के, तो सब लोग पूछे भाई आप तो यहाँ रक्षा मंत्री हैं, क्यों गोवा की सोच रहे हैं? उन्होंने कहा कि इतने कार्यक्रम हैं, इतने स्कीम्स हैं, अगर मैं अभी गोवा के मुख्यमंत्री होता तो ऐसे ही, मतलब ये स्कीम्स पहले नहीं थे, जो गोवा जैसे छोटे राज्यों की जो समस्याएं हैं, जो Goa has its own very problems, very peculiar to it. These schemes, if they can be implemented there, they can give a tremendous push. So that is a kind of imagination that is a politician who wants to serve and do can actually think. बिल्कुल। और अगर हम यहाँ तो हम बात करें इतने बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की आबादी के लिए सबसे बड़ा राज्य है इस हमारे देश का, बिल्कुल महिलाओं की भूमिका के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करना चाहेंगे। विनीत जी, बिल्कुल अनुपमा जायसवाल हो, रीता बहुगुणा जोशी हो, जिस तरह से महिलाओं की खासी भागीदारी दिख रही है, कैबिनेट में भी अभी शपथ दिलाई जा रही है, और वोटिंग टाइम पे भी देखा हमने लंबी लंबी कतारें, हर वर्ग के, समाज के हर वर्ग की महिलाएं पहुंची और उन्होंने वोट किया, और बाद में जो ट्रेंड्स आए, जो रिजल्ट आए, उन्होंने भी साबित किया कि महिलाओं ने इस बार खासी बहुत मजबूत दावेदारी, अपनी भूमिका निभाई इस चुनावों में। किस तरह से देख रहे हैं कैबिनेट के पूरे रूप प्रकूट? यहाँ पे थोड़ा चेहरा नजर आ रहा है, कैबिनेट भी चल रहा है, महिलाओं के रिप्रेजेंटेशन को किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए, उतना ज्यादा तो नहीं है, परसेंटेज के हिसाब से देखिए तो बहुत हाँ, उस हिसाब से कम है, हाँ। और लेकिन कोई इस पे जरूरी नहीं कि महिलाओं का महिलाएं करें। अब जैसे गैस सिलेंडर देने की बात थी, इसने एक दुखती रग पर हाथ रखा। एक महिला जिसको चारा जो ईंधन इकट्ठा करने के लिए पूरे दिन धक्के खाने पड़ते हो, उसको घर में अगर गैस का सिलेंडर मिल जाता है तो उसकी जिंदगी में तो बहुत बड़ा बदलाव आ जाता है। अगर उसके घर में टोंटी का पानी, या घर में भी ना है, गांव के चौराहे पर भी मीठा पानी मिल जाए तो उसकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आ जाता है। तो इस तरह की नीतियां अगर लागू की जाए जिससे उनको सीधा फायदा हो और उनमें इनिशिएटिव सरकार ले, तो महिलाएं तो सबसे पहले, महिलाएं तो बहुत उदार भी होती हैं, करुणामयी भी होती हैं और भावुक भी होती हैं, क्योंकि माँ भी होती है, बेटी भी होती है, बहन भी होती है। तो महिलाओं को खुश करना बहुत आसान है। इसलिए हम लोग के यहाँ सीताराम, राधा कृष्ण, उमा शंकर पहले महिलाओं को सम्मान देते हैं। तुलसीदास जी भी जब अपनी तपस्या करते करते थक गए और भगवान राम ने कृपा नहीं की, तो आखिरी रात पद लिखते हैं, कबहु को अम्ब अवसर पाए मेरी असुरी दियावियो कछु करुण कदर, हे सीता माँ करुण प्रसंग चलाकर भगवान राम को मेरी याद दिला देना। तो स्त्रियों के दिल को अप्रोच करना और स्त्रियों से लाभ लेना आसान होता है, इसीलिए भारत में देवियों को महत्व दिया गया है। मैं समझता हूँ कि मोदी जी का बड़ा विशेष ध्यान इस बात पर रहा है, अपने चुनाव में भी और राज्य के चुनाव में भी, किस तरह महिलाओं के दुख दूर किए जाए। और महिलाएं में, अब वो चाहे जैसे मैंने 3 तलाक की बात की, वो कोई मुसलमान हिंदू की बात नहीं, महिला सम्मान से जी सके, ये उनका एजेंडा है। और उस एजेंडा में जो जो चीजें जरूरी हों उनको लागू किया जाएगा, महिलाओं का समर्थन। And so it's very tragic that although we talk about respect for women, the condition of women vis-a-vis law and order situation in Uttar Pradesh was gruesome. I mean, we had a minister with allegations of rape who could not be tracked. So there the focus has to be more. I mean, it's one thing to, of course, talk about respect to women and hail their position, and at the ground level make a difference so that women, young women who want to go out and work, feel secure and work towards the development of the state. There are two things about it, and this I said at that time also, at Nirbhaya case also, in your studio here. I feel that rape of a woman is something which cannot be stopped with law alone. This is something very important, because the year anti-child marriage law was made in India by Britishers, 3,500,000 child marriages took place. There are enough laws against corruption, but corruption doesn't stop with law. It is it has to be the will of the society. It has to be the role of media. It has to be the role of the educational institution to bring that attitudinal change. Let me tell you that incest is very common in Indian society, right? Now, in incest, what happens? Within a joint family, a widow is constantly exploited by her brother-in-laws, and the mother-in-law says, don't make it public,
बिकॉज घर की इज्जत घर में रहनी चाहिए. नाउ विच लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कैन इंप्रूव इट? आई एम नॉट सेइंग दैट लॉ एंड सिचुएशन वाज वेरी गुड, इट वाज बैड एंड यू नो दादरी चरखी दादरी केस हैपेंड, सो मेनी बदायूं का हुआ, वो सब चीजें हुई. सवाल ये है कि महिलाओं की इज्जत अगर करनी है तो समाज के एटीट्यूड को बदलना पड़ेगा, और समाज के एटीट्यूड बदलने का काम शिक्षा, मीडिया, राजनीतिक सबकी तरफ से हो, और इस दिशा में प्रयास ठोस किए जाए तो स्थिति बदले. You're right, but we can't underestimate the importance of implementation of law. I mean, a lot of times one knows who the culprit is, but you know he's in a position of power. In some manner, he's able to escape. So it's the implementation of law. Fear of law is something that one would say that in Uttar Pradesh did not exist for a long time. So that you think that would be very crucial. I mean, for women to feel safe, for them to know that the criminal. एक कहानी Of course. 2 लाइन की कहानी है. I mean, there's short-term and long-term फ्रांस measures. के राजा ने ये मनादी करा दी कि जो भी जेब कतरा पकड़ा जाएगा उसको सरेआम फांसी दी जाएगी, और जिस वक्त वो फांसी दी जा रही होती थी दर्जनों जेबें कट रही होती थी. तो सिर्फ कानून से समाज नहीं बदला करता, समाज को बदलने की जो इनिशिएटिव चाहिए वो लीडरशिप. So both have to go hand in hand. There is a short-term resolution, of course, making the law implementation stronger, and of course, societal change. The attitudes have to change across the state, across the country, for women to really feel safe and also work towards the development of the nation, as to say. बिल्कुल, शपथ ग्रहण समारोह की ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं. योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है. साथ ही साथ योगी आदित्यनाथ की जो पूरी टीम है उसने भी शपथ ली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत भाजपा के तमाम मुख्यमंत्री इस वक्त पहुंचे हैं शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत करने के लिए. योगी आदित्यनाथ, विकास के एजेंडे को बढ़ाना एक बेहद बड़ी चुनौती होगा, और अब नए मुख्यमंत्री के पद के रूप में उन्होंने शपथ ले ली है. तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन चुके हैं योगी आदित्यनाथ. आध्यात्म से राजनीति का एक बेहद सफल सफर, एक लंबा सफर तय किया उन्होंने. वसुंधरा राजे, देवेंद्र फडणवीस, सर्बानंद सोनोवाल, मनोहर पर्रिकर, वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, भाजपा अध्यक्ष अमित शाह समेत सभी तमाम दिग्गज नेता इस वक्त मौजूद रहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे. That's right, and we're bringing those visuals live from Lucknow. मुलायम सिंह यादव भी इस वक्त मौजूद हैं. तो विपक्ष और पक्ष और विपक्ष एक साथ एक ही मंच पर नजर आ रहे हैं. A constructive role. We see former Chief Minister Akhilesh Yadav with his fire, Mulayam Singh Yadav also present and exchanging pleasantry with the Prime Minister. We were bringing those live visuals from Lucknow, and we see all the leaders from, in fact, different party lines exchanging pleasantries with each other. So there is a lot of positive force that we see on the screen at the moment. जनता का जबरदस्त उत्साह, जनता की जबरदस्त तालियों की गूंज के बीच एक लोकतंत्र के पर्व का बेहद शुमा यहाँ पर. And we have the man of the moment occupying the center stage with Prime Minister Modi, and on the other side he has the BJP chief Amit Shah. It's Yogi Adityanath taking over as the new chief minister of the most crucial state, if one may say, of Uttar Pradesh. Lot of expectations. One hopes, one wants that the reforms and the development schemes that Prime Minister Modi has introduced in the country will be implemented more efficiently, and we see that sharing a short conversation with the new Chief Minister, that's Prime Minister, in Lucknow, and we're bringing those visuals from Lucknow. A very positive, a very energetic oath-taking ceremony where all the main leaders of BJP, the chief ministers of different states, have descended, and we can see that on the stage they're sharing pleasantries with each other. Of course, Prime Minister is the focus, and also the focus is on the new Chief Minister of Uttar Pradesh. It's Yogi Adityanath. There's much suspense after BJP got a huge mandate in the Uttar Pradesh Assembly elections, a historic mandate, and all eyes were on who would take the reins of the Chief Minister's office. We now know that it's Yogi Adityanath.
hailing from Gorakhpur, is now going to be carrying huge expectations, and we see Prime Minister exchanging pleasantries with all the BJP leaders, workers who've come all the way from different parts of the country to Lucknow to join Yogi Adityanath as he takes the huge responsibility of leading the state on the path of development. साथ ही साथ दो डिप्टी सीएम भी यानी मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर दिनेश शर्मा ने उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है, और वो भी किस तरह से बीजेपी मोदी और प्रधानमंत्री मोदी और योगी तीनों के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। लोगों की अपेक्षाओं, इतनी भारी मैंडेट को यहाँ पर जमीन स्तर पर बदलाव की बयार युवाओं से लेकर समाज के हर वर्ग ने जबरदस्त उत्साह, जबरदस्त वोट लहर के साथ जो मैंडेट दिया है भाजपा को, वो किस तरह से वो उसको पूरा करते हैं। शेखर जी, कहा जा रहा है कि जैसे ही वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे उसके बाद तुरंत बाद ही कोई बड़ी अनाउंसमेंट कर सकते हैं योगी आदित्यनाथ अपनी छवि के अनुरूप। क्या लगता है, क्या कुछ सबसे पहले उनकी प्रायोरिटी होने वाली है, क्या कुछ कह सकते हैं वो आप सबसे पहले? देखिए, पहले से ये संकेत आ रहा है कि जो किसानों की जो कर्ज है उसकी माफ करने की बात मैनिफेस्टो में भी थी, कई बार इलेक्शन की कैंपेन के दौरान कही गई। वो सबसे बड़ा पहला फैसला होगा। दूसरा, वो स्लॉटर हाउसेस की बंद करने की भी बात है, तो वो भी दूसरा हो सकता है। फार्मर लोन जो वेव करने की बात वही सबसे एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने कहा भी है उसके बारे में तो वो यूपी के जो कर्ज है, किसान वो कर्ज की बोझ में कभी अपना सर उठा नहीं पाए, तो वो बड़ा फैसला होगा। और तीसरा, मुझे लगता है तुरंत जो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर उस पर कई डायरेक्शंस होंगे, जिसमें अपराधीकरण रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए कई कार्रवाई होगी। और चौथा चीज जो होगा कि बाकी जो मैनिफेस्टो में जो चीजें हैं उसका एक प्रकार के टाइम टेबल बनेगा कि जो प्रॉमिसेस है वो कैसे लागू होगा, कैसे इम्प्लीमेंट होगा, और इस पर ध्यान दिया जाए। And Shekhar ji, if we spend some time talking about the farmers once again, one thing is to of course waive the loans, but for real development of the farmers, for them to really stand on their feet, you have to empower them. And here Yogi Adityanath may have a lot of interesting plans almost ready for him. As far as the central government is concerned, there is soil testing, health card, there is crop insurance. Perhaps what he would need to do is to kind of implement them efficiently, because these plans are already doing well in a lot of BJP ruled states also. And here, now that there's a similar party governing the center and the state, he has the advantage of efficiently implementing the plans which are already doing well and proposed by the center. Yeah, there are plans which are doing well in other states, but UP has a UP specific problems. What would those be? One is, re-look at the irrigation facilities available, water availability, and the crop pattern. What kind of Bundelkhand has been in news for so years. what can be done to I think the basic thing is recapitalizing agriculture, because the investment in terms of agriculture in Uttar Pradesh has gone down over the years. So what can be done to how you can refund several agricultural projects? That will be one of the biggest thing, because Karja Maaf is something that is book clearance. But lot more need to be done to empower the farmer. साथ ही साथ किसानों के साथ साथ युवा और रोजगार, पलायन की समस्या एक बहुत ही गंभीर समस्या है। मैं एक बात यहाँ कृषि संबंधित कहना चाहता हूँ। मैंने भारत के कई हिस्सों में जाके ऐसे नूतन प्रयोग देखे हैं जहाँ कम पानी से, बिना फर्टिलाइजर के, बिना पेस्टिसाइड के बहुत अच्छी स्वस्थ खेती हो रही है। और ऐसे डॉक्टर भारत भूषण त्यागी को प्रधानमंत्री ने अपने राष्ट्रीय सलाहकार ड्रॉप इरिगेशन जिसको कहते हैं जी। तो अभी पंजाब में मैं गया था एक समारोह में, और मुझे देख के इतनी तकलीफ हुई कि 700, 800, 900 फीट पानी नीचे चला गया। पंजाब जैसे राज्य में जहाँ ब्यास, सतलज, बड़ी बड़ी नदियां बहती हैं, जहाँ 20 फुट भी पानी निकल आया करता था, आज 900 फुट पानी चला गया। यही हालत यूपी की है। इरेशनल तरीके से बोरवेल्स लगाकर जो पानी खींचा जाता है, उससे वाटर टेबल बराबर नीचे जा रही है, उससे पानी में सैलिनिटी बढ़ रही है, उसमें सॉइल खराब हो रही है। इन सब चीजों को डील करने के लिए कैपिटल इंटेंसिव की बजाय रैशनल एग्रीकल्चर की जरूरत है, और उस तरफ बहुत से सक्सेस मॉडल हैं जिनको अडॉप्ट करने की जरूरत है। अगर हम पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री के शिकंजे में फंसे रहेंगे तो हम किसानों को कर्जे से निकाल नहीं पाएंगे। किसानों को कर्जे से निकालना, उनको आत्मनिर्भर बनाना, उनकी कृषि को स्वस्थ करने के लिए बहुत सारी पारंपरिक ज्ञान की जरूरत है जो उपलब्ध है, जिसका प्रयोग किया जाना बाकी। बिल्कुल। तो किस तरह से उत्तर प्रदेश की जनता को एक कुशल प्रशासन देने की बात यहाँ पर हो रही है, विकास के मार्ग पर एक बार फिर इस
राज्य को हम कह सकते हैं एक बार दोबारा उस राज्य को वापस लाने की राह पर चलने की बात है। युवाओं की अपेक्षाएं हैं, समाज के हर वर्ग की अपेक्षा है इस सरकार से, और उन्हीं अपेक्षाओं की आज हमने बानगी देखी कि किस तरह से योगी आदित्यनाथ ने एक भारी मैंडेट के बाद शपथ ली, तो साथ ही साथ उनकी जो पूरी टीम योगी आदित्यनाथ की टीम है वो भी मौजूद थी, उन्होंने शपथ ली। क्या क्या आगे भी नई सरकार में हम अनुभव और युवा दोनों को ही तरजीह देख रहे हैं, महिलाओं का भी रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं, और भी संभावित मंत्री हैं, कौन कौन हो सकते हैं उस पर तस्वीर थोड़ी शाम तक साफ हो पाएगी। लेकिन फिलहाल टीम योगी आदित्यनाथ का गठन हो चुका है, और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की जनता ने जितनी भारी विश्वास के साथ जो एक बड़ा मैंडेट दिया इस सरकार को, इतनी भारी संख्या में बाहर आए और लोकतंत्र के इस पर्व में उन्होंने अपनी भागीदारी, अपनी जो भूमिका है, अपनी जिम्मेदारी को निभाया और वोट दिया, उसी का आज हमने फल हम देख रहे हैं। तो उम्मीद यही है, सब उम्मीदों और आकांक्षाओं के साथ सभी ने हमने चुनौतियों की बात की, किस तरह से नए समीकरणों की बात की, 2019 नहीं बल्कि यहाँ पर 2022 का जो हम यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो एक बात कही है कि न्यू इंडिया, आई एम न्यू इंडिया प्लेज की बात कही है, उसी का सपना साकार होने की हम यहाँ पर उम्मीद कर सकते हैं। That's right. And if we talk about what the Prime Minister said through video conferencing at India Today Conclave 2017, he spoke about how the movement for development has to be a movement which is as large across communities, across cultures, like the freedom movement. And that is when real development will happen in the country. And perhaps today is an important milestone where people of Uttar Pradesh in their historic mandate gave a mandate which was beyond caste, beyond religion, beyond all these lines. They voted for development, and across sections of societies BJP got a huge mandate, and today we saw the face of the Chief Minister. It's Yogi Adityanath, who has the huge responsibility of taking those expectations, fulfilling them, and also work towards fulfilling the vision of the Prime Minister, which is the development of the country. And development is something, as we were in our discussion throughout talking about, it's not common to any community, it's not common to any religion. It is something that is crucial for India as a nation to move forward. And you can see the visuals of jubilant BJP workers, and we're focusing on a cracker, and it has been a cracker of an election this year. And Yogi Adityanath, man of the moment, the center of it. And as that cracker burns and people celebrate around, people also will have sky-high expectation. After a huge mandate comes huge responsibility. बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि भारी जीत के बाद एक विनम्रता आती है, चुनौतियों का एहसास होता है, और उसी चुनौती का एहसास हमें उनके हाव भाव में हर जगह नजर आया, उनकी बातों में नजर आया। और उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सरकार से बढ़कर है जनशक्ति, और उसी जनशक्ति का एहसास हम सभी को होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दोनों खास मेहमान जो इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ जुड़े और चर्चा की इस नए बदलाव की। बहुत बहुत शुक्रिया शेखर जी स्टूडियो में आने के लिए, चर्चा करने के लिए, और विनीत नारायण जी बहुत बहुत शुक्रिया। So those were the updates in this special presentation. We were bringing you live the coronation of the new Chief Minister of Uttar Pradesh, Yogi Adityanath. We were also talking about the challenges that the young leader, has been a 5-time MP, remember, is going to face, the issues that he should focus on, and the larger issue of development that Prime Minister Modi had started. Now he is the ambassador in Uttar Pradesh to take that vision forward, and we'll of course be tracking closely how his performance is on that. बहुत बहुत शुक्रिया योगी का राज तिलक इस बहुत खास पेशकश में हमारे साथ जुड़ने के लिए। शुक्रिया, नमस्कार। नमस्कार।